ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 22.4 लीटर, it means 22.4 liters of any gas at NTP, normal temperature and pressure, has volume 22.4 liters, and this is equal to 1 mole of the gas. It means 22.4 liter of any gas at NTP contains 6.022 into 10 to the power 23 molecules of the gas. ठीक है, तो Emilio Avogadro says that equal volumes of all gases at similar conditions of temperature and pressure contains equal number of molecules. Means if there are two gases, both have same volume and same conditions of temperature and pressure, then they have same number of molecules also. All right, this was Avogadro's rule. That is, V is directly proportional to capital N. Capital N stands for number of molecules and V for volume. V is directly proportional to capital N. Similarly, we studied that number of moles is directly proportional to number of molecules. Greater the number of molecules, greater would be number of moles. So small n is directly proportional to capital N. ठीक, अब कैपिटल एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन और साथ में कैपिटल एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑल्सो. It means volume is directly proportional to number of moles of the gas. All right, so today let's start another law that is called as ideal gas equation. So children, what is ideal gas equation? Have you ever heard what is ideal gas equation? किसी को पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? Yes, sir. या हाँ बोलो. PV Sir, equals PV to is equal NRT. to nRT. PV equals nRT. ठीक है, सो आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन बच्चों बोर्ड में क्या लिखा है, उसकी फॉन्ट साइज क्लियरली दिख रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so how can we know that ideal gas equation is PV equals nRT? This equation is known as ideal gas equation. अब देखिए इसमें क्या क्या क्वांटिटीज हैं. Pressure is there, volume is there, then number of moles is there, and temperature is there. So ideal gas equation correlates the pressure, volume and temperature of the gas simultaneously. इसके पहले हमने जो भी लॉस पढ़े थे उसमें तीनों क्वांटिटीज को कोरिलेट करने वाला कोई भी लॉ नहीं है. ना तो बॉयल्स लॉ है, ना चार्ल्स लॉ है, और ना गै-लुसैक्स लॉ है, ना एवोगैड्रोस लॉ. ठीक है, एवोगैड्रोस ले सिर्फ लॉ क्या करता है, एन को वी से रिलेट करता है. ठीक है, चार्ल्स लॉ क्या करता है, वी को पी से रिलेट करता है, सॉरी बॉयल्स लॉ. और चार्ल्स लॉ क्या करता है, वॉल्यूम को टेम्परेचर से रिलेट करता है. गै-लुसैक्स लॉ प्रेशर को टेम्परेचर से रिलेट करता है. द ओनली इक्वेशन विच कोरिलेट्स द प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर and number of moles of any gas is ideal gas equation. Let's see how this ideal gas equation is derived. So for deriving ideal gas equation, we can take the help of all the three laws that we discussed. ठीक है, so we can derive ideal gas equation by using Boyle's law, Charles law and Avogadro's law. So according to Boyle's law, क्या है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर at constant T. At constant T. This is equation number 1. Now, according to Charles law, V is directly proportional to Kelvin temperature at constant pressure. Then, according to Avogadro's law, volume of gas is directly proportional to number of moles of the gas.
This is equation number 2 and this is equation number 3. Let us combine equation 1, 2 and 3. Combining equations 1, 2 and 3 we get, क्या मिलेगा बच्चों बताओ? लेफ्ट साइड में v है, ठीक, v is directly proportional to n t upon p, ठीक है, v is directly proportional to n, v is directly proportional to capital T and v is inversely proportional to p. Now if we remove this sign of proportionality, then we have to add a constant. So v equals n, लिख लीजिए कांस्टेंट r and t upon p. On rearranging, we can make it as v equals nRT upon p. ठीक है, अब इस p को आप क्या कहिए, लेफ्ट साइड में लाइए, ट्रांसपोजिंग कर लीजिए. जब आप ट्रांसपोजिंग करेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, p into v equals nRT. So children, in this way we can derive ideal gas equation by taking the help of 3 laws: Boyle's law, Charles' law and Avogadro's law. Understood? Is it clear to all of you? Yes, sir. समझ में आ गया बच्चों सभी? Yes, sir. Okay, good. Now next, application of ideal gas equation. Next heading that we are going to study is how this ideal gas equation can be applied for calculating pressure, temperature or volume of gases. So we know that PV equals nRT. Take, this is ideal gas equation. Ideal gas equation. Okay. Now, if suppose the temperature, pressure and volume is changed. Actually, when we change the temperature, pressure and volume will automatically get changed. Okay. So at temperature T1, pressure P1 and volume V1, the equation can be written as P1 V1 equals N R T1, or you can write P1 V1 upon T1 equals NR. Why N is not changing? कोई बता सकता है मुझे कि यहाँ पे N चेंज क्यों नहीं रहा? जब आपने टेम्परेचर चेंज किया. यस रितु बोलो. क्योंकि वो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती. N कांस्टेंट क्यों है, यही तो मैं पूछ रहा हूँ बच्चों. सर एवोगाड्रो कांस्टेंट है ना. हाँ, N कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि N डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द गैस. ठीक है, हम मास चेंज नहीं कर रहे हैं. फॉर गिवन मास ऑफ गैस the volume can change, pressure can change and temperature can change, but number of moles will not change because we are talking about the same mass of the gas. So N will remain N because the mass of the gas is kept constant. All right, Ritu, समझ में आ गया? Yes, sir. N is not Avogadro's number. N है number of moles. Avogadro number का symbol क्या होता है? ये Avogadro's constant Na. नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे या मास पे, दैट इज कांस्टेंट. सो सिमिलरली एट टेम्परेचर T2, जब टेम्परेचर चेंज कर दिया, देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस विल बिकम P2 एंड वॉल्यूम may become V2. Thus, ideal gas equation can be written as P2 V2 equals nRT2. Here also N will remain constant. N will not change. Will not write N1 or N2 because it depends upon mass of gas. ठीक है, or we can write P2 V2 upon T2 equals NR. Here you can see NR is constant because number of moles is constant
and R is also constant. Product of two constant would be constant. ठीक है. Thus, if this is equation number 1 and this is equation number 2, we can compare equation 1 and 2 as comparing equation 1 and 2. We get क्या हो जाएगा बच्चों? P1 V1 upon T1 equals P2 V2 upon T2. ठीक है. So if temperature is changed, pressure will change and volume will change. The new pressure, new volume and new temperature for a gas are related to each other as P1 V1 upon T1 equals P2 V2 upon T2 for the given mass of gas. This equation, this is another form of ideal gas equation, and this equation is used for solving numericals. That means this equation is an application of ideal gas equation. ओके बोलो, समझ में आया? क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है. आवाज जा रही कि नहीं जा रही मेरी? Yes, sir. All right. Now, after this, let us try to derive the units of universal gas constant. Here the R, the quantity R is known as universal gas constant. ठीक है. आइडियल गैस इक्वेशन में देखिए क्या है, PV इक्वल टू nRT, where R is known as universal gas constant. Why it is called universal? It is called universal because for every gas its value remains constant. कोई भी गैस हो, किसी भी टेम्परेचर पे हो, किसी भी प्रेशर पे हो, इसकी वैल्यू जो रहेगी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वो सेम रहती है. देयरफॉर इट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. नाउ derivation of units of ideal universal gas constant. ठीक है. अब देखिए आइडियल गैस इक्वेशन से हम क्या जानते हैं कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू nRT. सो R इक्वल्स कितना हो जाएगा? प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन N इनटू T. ऑलराइट. नाउ वी नो दैट प्रेशर इक्वल्स क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स अपॉन एरिया इनटू वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ मोल्स इनटू टेम्परेचर. ये हो गया. ठीक है. अब इनकी यूनिट अगर हम लिखना चाहें तो एरिया से वॉल्यूम को अगर हम कट करेंगे क्या बचेगा? सिर्फ लेंथ बचेगी. ठीक है. वॉल्यूम डिवाइडेड वॉल्यूम वी कैन राइट लेंथ क्यूब और एरिया लेंथ स्क्वायर. ठीक है. तो लेंथ क्यूब डिवाइडेड बाय लेंथ स्क्वायर विल गिव ओनली लेंथ. सो इट कैन बी रिटन एज R इक्वल्स फोर्स इनटू लेंथ अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इनटू टेम्परेचर. ठीक. अब फोर्स इनटू लेंथ क्या कहलाता है बच्चों? कौन बताएगा मुझे? फोर्स इनटू लेंथ इज नोन एज Work. work done. Correct. So work upon mole into temperature. Thus, universal gas constant can be defined as the work done per unit per degree temperature per mole of the gas. ठीक है. So work done, universal gas constant लिख लीजिए. Universal gas constant can be defined as work done per degree per mole of the gas. R can be defined as work done per degree per mole of the gas. ये तो R की डेफिनेशन निकल आई. अब इस R की डेफिनेशन से हम क्या कर सकते हैं? वी कैन डिटरमाइन द यूनिट ऑल्सो.
ठीक, आप what is the unit of force? फोर्स की यूनिट न्यूटन, न्यूटन मीटर अपॉन मोल into Kelvin. So what will be unit of R? Unit of R. Unit of R equals न्यूटन मीटर ले लिया, तो न्यूटन मीटर की जगह पे हम ये भी ले सकते हैं ना, पी वी इक्वल टू एनआरटी लेने तो। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि न्यूटन मीटर मोल इनवर्स कैल्विन इनवर्स। एक तो ये यूनिट हो गई, ठीक है। आप दूसरी यूनिट हम लिख सकते हैं पी वी इक्वल टू एन आर टी वाले इक्वेशन के हिसाब से, पी वी इक्वल टू एन आर टी, सो आर इक्वल्स पी वी अपॉन एन टी, इससे भी लिख सकते हैं। अनदर यूनिट इज यूनिट ऑफ आर इक्वल्स, प्रेशर की यूनिट क्या हो जाएगी, इट कैन बी एटीएम, एटीएम, ठीक है। वॉल्यूम की एटीएम डेसीमीटर क्यूब, अच्छा एसआई यूनिट में ले लें तो एसआई यूनिट नहीं है, डेसीमीटर क्यूब, उसके बाद मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। और यूनिट ऑफ आर हम क्या लिख सकते हैं, एटीएम की जगह पे हम बार ले सकते हैं, प्रेशर में क्या हो जाएगा बार। उसके बाद मान लीजिए हमने यहाँ पे वॉल्यूम ले लिया सेंटीमीटर क्यूब में, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। यूनिट ऑफ आर और क्या लिख सकते हैं, एटीएम की जगह पे बार ले लिया। ऑलराइट, नाउ व्हाट विल बी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होगी, पास्कल, ठीक है, पास्कल। और वॉल्यूम की क्या होगी, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम, मीटर क्यूब, ठीक है, पास्कल मीटर क्यूब मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। So these are different units in which universal gas constant is expressed. ठीक है, समझ में आ गया। डिपेंड करता है कि हम प्रेशर की क्या यूनिट ले रहे हैं। अगर न्यूटन मीटर लिया तो फिर वो दूसरे वाले डेरिवेशन से आ गया। यहाँ पे हमने क्या लिया, प्रेशर की यूनिट एटीएम, वॉल्यूम की डेसीमीटर क्यूब, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, दूसरा बार ले लिया सेंटीमीटर क्यूब ले लिया, ठीक है। एसआई यूनिट में पास्कल ले लिया, मीटर क्यूब ले लिया, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स तो सब में रहेगा। So, depending upon different units, let us try to calculate the values of universal gas constant. So, value of universal gas constant depends upon the unit in which it is expressed. ठीक है, कौन सी यूनिट में हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को एक्सप्रेस कर रहे हैं उसके हिसाब से इसकी वैल्यूज होंगी। जैसे फर्स्ट आप लिख लेते हैं हम वैल्यूज ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर। केस वन में क्या ले लें हम, व्हेन द प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन एटमॉस्फेयर एंड वॉल्यूम इन लीटर्स, व्हेन प्रेशर इज इन एटमॉस्फेयर एंड वॉल्यूम इन लीटर एंड वॉल्यूम इन लीटर्स, ठीक। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हम जानते हैं क्या कि आर इक्वल्स पी वी अपॉन एन टी। सो आर इक्वल्स प्रेशर की वैल्यू क्या हो गई 1 एटीएम, ठीक है, इनटू वॉल्यूम लीटर है, तो लीटर को आप लीटर ही रहने दीजिए कि एक मोल गैस के लिए लिखना है आपको, पर मोल है ना, पर मोल है तो 1 मोल गैस के लिए एनटीपी कंडीशंस में वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर एट एसटीपी। नंबर ऑफ मोल्स ले लिया 1 मोल, और एनटीपी पे टेम्परेचर कितना होगा 273 केल्विन, ठीक, एट एनटीपी फॉर 1 मोल ऑफ गैस।
So now solve it. R equals 22.4 upon 273 equals, this gives the value 0.0821. And what will be unit? ATM, liter, mole inverse, Kelvin inverse. So children, when the pressure of 1 mole of gas at NTP is expressed in terms of 1 atm and the volume in liters, then the value of universal gas constant would be 0.0821 atm liter mole inverse Kelvin inverse. आ गया समझ में? बोलो. Yes, sir. Okay. Now case 2. सर Case, yes. सर वो हाँ एक बच्चों, बार फिर से बोलो. जो सेकंड लास्ट लाइन है सर वो रीड कर देना एक बार सर, वो क्लियर नहीं दिख रहा क्योंकि. ये वाली. हाँ ठीक है. हाँ सेकंड सर. लास्ट लाइन, R equals 1 atm into 22.4 liter upon 1 mole into 273 Kelvin, because at normal temperature pressure conditions for 1 mole of gas, at normal temperature कितना होगा? 273 Kelvin. Normal pressure कितना होगा? 1 atm. At normal temperature and pressure for 1 mole of gas, what would be the volume? 22.4 liter. ऊपर लिख 22.4 liter divided by 1 mole into 273. धनंजय, यस आगे सर. सुनिए. हाँ सर. Okay. Case 2, when pressure is in bar and volume in meter cube. Pressure is in bar and volume is in decimeter cube. So 1 decimeter cube equals 1 liter. होता है कि नहीं होता? बताओ. 1 liter is equal to how many decimeter cube? बोलो बच्चों. सर 1 ही 1 होता लीटर है. में कितने डेसीमीटर क्यूब होते हैं? 1. हाँ 1 होता है. ओके. सो 1 लीटर इक्वल्स 1 डेसीमीटर क्यूब. मतलब ये लीटर है. आपको सिर्फ प्रेशर क्या किया गया है? एटीएम की जगह पे बार में किया गया है. इसका मतलब एटीएम को आपको बार में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है. तो वी नो दैट पीवी इक्वल्स एन आर टी और R equals PV upon NT. So R equals, बेटा आपको एटीएम को बार में कन्वर्ट करना कैसे करते हैं? हाउ मेनी बार्स इक्वल एटीएम? What happened? Network gone. हो गई 22.
हो गया। Children, am I audible now? यस सर। Yes, यस सर। ऐसी बारिश yes, sir. बारिश ऐसे ही परेशान करेगी। एकदम से तेज बारिश चालू हुआ, नेटवर्क चला गया, पूरा जीरो हो गया, मेरे घर के सारी क्लासेस चली गई। ठीक, और ऊपर से आसपास जो टीचर पढ़ा रहे दूसरी क्लासेस में वो भी सब चले गए, सबका नेट खत्म हो गया आज वो बारिश की वजह से। अभी नेट, ठीक है, all right. So what we were discussing, when the pressure is in bar and volume in decimeter cube, let's what will be the effect of using bar? PV equals PV upon NT। देखिए बच्चों, जब हम बार को एटीएम में कन्वर्ट, एटीएम को बार में कन्वर्ट करेंगे, देन वी हैव टू डिवाइड एटीएम 1 एटीएम बाय 0.987। तो हम इसको लिखेंगे R इक्वल्स, यहाँ पे आंसर जो आपका लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 1 बार, वी आर टेकिंग 1 बार इनटू वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। लेकिन 1 बार जो आपने लिखा है, 1 बार और 1 एटीएम आर नॉट एग्जैक्टली सेम, इसलिए 1 एटीएम के बराबर करने के लिए इसको हम डिवाइड करेंगे 0.987 से। ठीक है, 0.987 हो गया इनटू टेम्परेचर 273 केल्विन। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, R इक्वल्स डेसीमीटर क्यूब मीन्स लीटर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 22 पॉइंट। जब आप इस डिवाइड करते हैं 1 bar pressure is converted in terms of bar by dividing 0.987, then the value becomes 22.7 decimeter cube। 1 mole का गैस का वॉल्यूम एट 1 बार प्रेशर कितना होता है 22.7 डेसीमीटर क्यूब। जबकि आइडियल कंडीशन में एनटीपी पे जब प्रेशर एटीएम में होता है तब होता है कितना 22.4, लेकिन जब प्रेशर बार में होता है तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है 22.7। ये डिफरेंस है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना है 0. सर आपकी वीडियो हाँ हाँ मोहित बोलो। सर वो जो आपने बोला वो रिपीट करो सर, आपकी नहीं आ रही थी, वो वीडियो जा रही है बार। हाँ वीडियो नेटवर्क आज वीक है। जब हम इन सॉफ्ट बार प्रेशर एरिया बार में, जब बार प्रेशर लेते हैं 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर डेसीमीटर क्यूब नहीं होता, बल्कि
हाँ बच्चों, तो फिर एक काम कर सकते हैं, आज नेटवर्क साथ नहीं दे रहा है, इसलिए अभी आज की क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। यू कैन आउट। बार बार नेट जा रहा है मेरा, जीरो हो रहा है नेट। डिस्कनेक्ट हो रहा है। सर केस 2 भी कल फिर से एक बार करा देना सर। Sairam sir. Sairam sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.